بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ سال 2016 کی بات ہے جب ڈاکٹر ذاکر نائک قطر میں موجود تھے اور سوال و جواب کے سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایک شخص جس کا تعلق بھارت سے تھا مگر وہ مذہب کے اعتبار سے مسلمان تھا، یہ شخص ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال پوچھنے آیا۔ Masood Hassan. I'm a diploma in mechanical engineering. My first identity is I'm Indian. And next question, if you ask what is your religious, I will say Muslim. But سوال کرنے والے نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا تھا کہ میرا نام مسعود حسن ہے اور اگر آپ میری تاریخ پوچھیں تو میرا تعلق بھارت سے ہے، اور یقیناً آپ اب مجھ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے والدین مسلمان تھے۔ چونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو میں بھی خود کو مسلمان کہتا ہوں، لیکن جب میں یہاں پر قطر میں آیا، آپ کے لیکچر سنے اور اس سے پہلے بھی آپ کے کئی لیکچر سنے تو مجھے اندازہ ہوا میں تو مکمل مسلمان بھی نہیں ہوں، میں تو صرف 1% مسلمان ہوں۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے تو اسلام اور اسلام کی تاریخ کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن اب جو مجھے عقل آئی ہے اس کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اسلام ہے دراصل وہ سائنس ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ شخص ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور وہ انتہائی ناخوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ اس شخص نے اپنا سوال جاری رکھا اور کہا کہ میرے نزدیک اسلام بھی سائنس ہے، اور سائنس کیا ہوتی ہے؟ سائنس میرے نزدیک دراصل اصول، قوانین اور ضوابط کے مطابق کی گئی تحقیق، پھر اس کا ایسی تحقیق ہونا جسے پوری دنیا مانے اور آنے والے دور میں کبھی بدلی نہ جائے۔ مثال کے طور پر میتھمیٹکس، فزیکل کیمسٹری اور باقی چیزوں میں بہت سے فارمولا ہوتے ہیں۔ ابھی اس شخص نے یہ بات کی ہی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مائکروفون کے سامنے آ گئے اور اسے ٹوک دیا اور روک دیا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ اس سے پہلے یاد رکھیے کہ اس شخص کا سوال اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے نہیں آیا ہے۔ listening your lecture speech, I realized that I am only 1% Muslim only because I don't know nothing. It's a past Muslim chapter. I don't know nothing. But with my little experience and knowledge, I can say that Islam is the science. Science means continuous study, observation, and arrive some formula which is universally true. For example, mathematics, there are so many formulas. There are physical science, chemistry. There are brother, did you hear the rules? Your question should be on 2 or 3 sentences. Yeah. If it's more than 2 or 3 sentences, it's a speech. یہ شخص ابھی سائنس اور فلسفے کا مکسچر اور ایک ملاپ بنا کر اپنا سوال بنا ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مائکروفون پر آ کر اس کو ٹوکا اور کہا کہ میرے بھائی، آپ نے اس اجتماع کے اصول اور قوانین کو نہیں سمجھا ہے۔ آپ جو بھی سوال کریں گے وہ سوال 2 یا 3 جملوں کا ہونا چاہیے، اس سے لمبا نہیں۔ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو ایک پوری تقریر ہے اور تقریر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے اتنے زیادہ غیر مسلم لوگ آئے، سیدھا سیدھا سوال کیا، جواب لیا اور چلے گئے۔ آپ ادھر سے ادھر گھما رہے ہیں۔ آپ کا سوال 2 یا 3 لائنوں کا ہونا چاہیے، بس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ شخص بولنے لگا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا سوال مکمل کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد بالآخر اس شخص نے اپنا سوال کر ہی لیا۔ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ انداز دیکھیے۔ There are so many formulas. There are physical science, chemistry. There are Brother, did you hear the rules? Your question should be on 2 or 3 sentences. Yeah. If it's more than 2 or 3 sentences, it's a speech. Yeah. The speech time is over. There are so many non-Muslims who are direct questions. Now you're beating around the bush. Yeah. Question should be in 2 or 3 sentences. So okay, I will finish my question. My question is that Peace TV not hurting any religious sentiment, not damaging any individuals, not damaging any sentiments. But why Peace TV is banned in India? اس شخص نے اپنا سوال مکمل کرنے کی آخری کوشش کی اور بڑے واضح الفاظ میں سیدھا سا سوال کیا اور کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ پیس ٹیلی ویژن، جو کہ آپ کا ٹی وی چینل تھا بھارت میں، اس نے کسی کے جذبات مجروح نہیں کیے، کسی اور مذہب کے خلاف بات نہیں کی، اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کی، اس کے باوجود وہ بھارت میں بینڈ کیوں ہے؟ پیس ٹی وی لوگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को मुख्तसरन दोहराया और फौरन से कहा कि बड़ा सीधा सा जवाब है, क्योंकि हुकूमत हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है। हुकूमत हमें अपने नेटवर्क को केबल के ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त ही नहीं देती। हमने सारे कागजात पूरे किए हैं, तमाम लवाजमात, कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनको दूर करके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, मगर हुकूमत हमें फिर भी इजाज़त नहीं देती है। और अगर हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर आप जाएं, आप हुकूमत से पूछें। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ये सारी बातें कर रहे थे तो सवाल करने वाला ये शख्स बहुत गौर से देख रहा था और अपने हाथ की एक उंगली उठाकर कुछ कहना भी चाह रहा था। ये मंजर आप भी देखिए। Question when Peace TV is not hurting any sentiments, why is Peace TV banned in India? Because the government doesn't give us downlinking permission. You go and ask the government why they are not giving us downlinking permission. If that is the case, No, not that is the case. We have applied, we have fulfilled all the requirements because it's a very popular channel. yeah, I know that. I know. You know it's popular, no? Very good. No, So that you have to go and ask the broadcast ministry. Yeah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा क्योंकि पीस टीवी बहुत मकबूल चैनल है तो इसीलिए वो बंद कर रहे हैं। सवाल करने वाले ने कहा जी हाँ वो मुझे मालूम है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा तो फिर आप जाएं और ब्रॉडकास्ट की वजारत से राब्ता करें और उन्हें कहें कि पीस टीवी को चलने दें। अब सवाल करने वाले ने बोलना शुरू किया और कहा कि आप और मैं ये बात जानते हैं कि हम कतर में मौजूद हैं और आज से कुछ अरसे के बाद भारत के वजीर आजम कतर के दौरे पर आ रहे हैं, तो क्यों ना ये मामला उनके सामने उठाया जाए। अभी इस शख्स ने इतना ही कहा था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा हाँ जब भारतीय वजीर आजम आएगा तो आप उन्हें जरूर बताइएगा कि पीस टीवी बंद किया हुआ है। सवाल करने वाला कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि ये मामला उनके सामने उठाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा हाँ ना उठाओ, जरूर उठाओ, आप उठाए ना। अब ये शख्स कहने लगा नहीं नहीं मैं नहीं, किसी और को उठाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से इसकी बात काटी और कहा कि तुम उठाओ ना ये मामला हुकूमत के सामने, भारती आप क्यों नहीं उठाते, कोई और क्यों, आप क्यों नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये अंदाज देखिए, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस शख्स पर गुस्सा आ रहा है, जबकि वो बात तो डॉक्टर जाकिर नाइक और पीस टीवी की बेहतरी की कर रहा था। Yeah, I know that. I know. You know it's popular, no? Very good. No. So that you have to go and ask the broadcast ministry. Yeah, I know the answer. Now our prime minister is coming next week. Where? Here. You tell him. Here in Qatar. Qatar. So whether we can raise this concern. Raise it, because very if- good. No, somebody should raise. You raise it, no? By somebody. No, we don't know, but some organizer should raise this concern. डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि आप ये मामला भारतीय वजीर आजम के सामने उठाइएगा, आप भी तो भारत के एक शहरी हैं ना। जवाब में शख्स ने कहा जी हाँ मैं भारत का शहरी हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा तो फिर आप ये मामला भारत के वजीर आजम के सामने जरूर उठाइएगा, क्योंकि आप शहरी हैं, आपका भी हक है, ठीक है। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अचानक से बात खत्म कर दी। दोस्तों आपको इस पूरी गुफ्तगू में लग रहा होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी कम बात क्यों की है और वो इस मामले पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे। क्या वो किसी से डर रहे थे या हिकमत और मसलहत से काम ले रहे थे। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद टीम हम कदम अहम वजूहात आपके सामने रखेगी। You raise it, no? By somebody. No, we don't know, but some organizer should raise this concern. You raise it, no? You are also a citizen of India or not? Yes. You are a citizen of Yeah, India or not? yeah. Raise the question, no? Okay? दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से बहुत कम गुफ्तगू की कोशिश की और वो डॉक्टर जाकिर नाइक की और इस्लाम की बेहतरी के लिए ही बात कर रहा था कि पीस टीवी को भारत में बंद कर दिया गया है, मोदी सरकार के हथकंडे हैं, तो हम यहाँ पर कतर में जब नरेंद्र मोदी आएगा तो उसके सामने एहतजाज करते हैं, ये मामला उठाते हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इस पूरी बात से भागते हुए नजर आए और ऐसा लगा कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार के सामने एहतजाज करने की कि पीस टीवी को क्यों बंद किया गया। जबकि दरअसल बतौर मुसलमान और बतौर एक मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे नहीं चाहेंगे कि पीस टीवी बहाल हो जाए और उसकी नशरियात एक बार फिर से नाजरीन देख सकें और दीन इस्लाम तेज़ी से फैलने लगे, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा ना किया। दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक कतर में मौजूद हैं। ये एक इस्लामी मुल्क है और कतर के भारत के साथ कुछ सिफारती और मुआशी ताल्लुकात हैं। ये वो मौका है जब डॉक्टर जाकिर नाइक एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस इज्तिमा के मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई कोई भी बात, अगर वो जज्बात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात कर देते हैं या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जज्बात में कतर की हुकूमत के खिलाफ कोई बात कर देते हैं, तो उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए कुछ मसाइल पैदा हो जाएंगे जो कानूनी और सिफारती नौयत के होते हैं, जैसा कि उन्हें भारत में सामना करना पड़ा। आज भी दुनिया के कई ऐसे
ममालिक हैं जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक दाखिल भी नहीं हो सकते और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो कड़वा सच मुंह पर बोल देते थे। लेकिन अब डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस मामले पर कुछ हद तक एहतियात बरतते नजर आते हैं, यहाँ तक कि इस वक्त भी वो मलेशिया के जिस खत्ते में रहते हैं वहाँ पर भी अक्सर लोग मलेशिया में रहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक से मुख्तलिफ ऐसे सवालात करते हैं जिस पर उनको इश्तियाल दिलाया जा सके, उन्हें गुस्सा आए और वो एक ऐसा बयान दाग दें जो कि इंटरनेशनल मीडिया की हाईलाइट बन जाए और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनने के बाद उस बयान के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर सख्तियां मजीद बढ़ा दी जाएं। इसी ख्वाहिश के लिए कुछ लोग होते हैं जो आकर डॉक्टर जाकिर नाइक को इश्तियाल दिलाने की भी कोशिश करते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी एहतियात करते हुए इस मामले पर ज़्यादा बात नहीं की, उल्टा सवाल करने वाले को ही कहा कि आप भी तो मुसलमान हैं, आप भी भारत के शहरी हैं, आप ये मामला क्यों नहीं उठा लेते, मैं तो अपनी सतह पर काम कर रहा हूँ। और याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने पीस टीवी को बैन करने के खिलाफ भारतीय हुकूमत के खिलाफ वहाँ की अदालतों से रुजू कर रखा है और इस मामले पर महंगे और भारी फीसों वाले वकीलों की मदद से डॉक्टर जाकिर नाइक ये केसेस, गो के वो मलेशिया में बैठे हैं मगर भारतीय अदालतों में ये तमाम केसेस का सामना कर रहे हैं और पीस टीवी की बहाली के लिए आज भी उनकी टीम सरगर्म नजर आती है। लेकिन जहां डॉक्टर जाकिर नाइक को पीस टीवी को बहाल करवाना है, वहीं पर खुद को इस काबिल भी रखना है कि वो जिंदा रहें और दीन इस्लाम की तबलीग जिस हद तक कर सकते हैं करते रहें, वरना नरेंद्र मोदी सरकार तो डॉक्टर जाकिर नाइक की दुश्मन है और वो किसी मौके की तलाश में है। दोस्तों, आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।